Hello, good morning. In the last class, we discussed about the basic structure of the cell. We discussed about the different organelles. In today's class, we will discuss about the structure of the plasma membrane and the transportation across it. Then we will proceed our discussion with the photosynthesis and respiration. So let's finish the structure of plasma membrane. If you look at the structure of plasma membrane, then it is a phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer. Lipids are fats. When phosphate group is attached to the fats, it is called as phospholipid. And it is called bilayer because the plasma membrane has two layers. And it is universal. It is present in all the organisms, whether it is bacteria, virus, plant, animal, or fungus. Now, if we talk about the how the phospholipids are arranged in the plasma membrane, then each phospholipid has head and a tail. Head and tail. This head part is phosphate and this tail part is the lipid or fat. The head part, that is round one, that is actually hydrophilic in nature, which means it is water loving, and the tail part, which is lipid part, that is hydrophobic in nature or water hating part. By water hating, I mean they are insoluble in water. And the head part, that is phosphate part, that is water soluble, so that is hydrophilic in nature. तो हाइड्रोफिलिक होगा, वाटर सॉल्युबल होगा, एंड इफ इट इज हाइड्रोफोबिक इट विल बी water insoluble. As I told you that this plasma membrane is bilayer. Okay, two layers are there in the plasma membrane. So one we have this layer and the other one is this layer. Okay, so it forms one layer, it forms another layer. And you can see in the two layered structure of the plasma membrane, the heads are facing outwards because they are hydrophilic, water loving, water soluble, so they come in contact with the water, while the tails they are facing each other in the center. Okay, they are facing towards each other and they are present in the interior of the membrane. So we also call it as a sandwich structure कि जो tails हैं plasma membrane की जो tails हैं, जो lipid part है, that was sandwiched between the head parts. Okay, so this is the basic structure of the lipid bilayer. Here you can see head parts are there. ठीक है, तो ये जितने भी आपको राउंड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर द हेड पार्ट्स. और हेड पार्ट्स के पास क्या है, टेल्स अटैच है एंड दीज टेल्स आर लिपिड पार्ट. तो एक लेयर यहाँ पे है, एक लेयर यहाँ पे है. ओके, दिस इज वन लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर. So it is called as phospholipid bilayer. Now apart from the presence of this phospholipid bilayer in the plasma membrane, there are some other components as well, like we have proteins also. ठीक है, तो phospholipids के अलावा यहाँ पे proteins आपको नज़र आएंगे. There are some proteins
which are present on the periphery, or we can say they are present on the outer side of the membrane. They will be called as peripheral proteins or extrinsic proteins. And some proteins are completely embedded in the membrane, or they are spanning the membrane, and we call them as integral proteins or intrinsic proteins. ठीक है, तो जो सरफेस पे प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल, एंड दोज विच आर embedded in the membrane, they are penetrating deep inside the membrane, they will be called as integral proteins. And integral proteins are very hard to remove from the membrane because they are penetrating deeply inside the membrane, whereas we can easily remove the peripheral proteins from the membrane because they are present only on the outer surface. Like this is the structure. Some of the proteins will be present here on the surface. ठीक है, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं. They are peripheral. और अगर कोई प्रोटीन इसके पूरा बीच में embedded है, just like this, so it is integral. Then apart from the presence of proteins, it also has some cholesterol molecules. Here you can see cholesterol molecules are also present in the plasma membrane. So cholesterol in your body or any other organism plays very important role in the formation of the plasma membrane. Then we have some carbohydrate chains. Those which are shown in green color, they are the carbohydrate chains. Okay. This carbohydrate chain is attached to the phospholipid bilayer, right? Whereas you can see this carbohydrate chain is attached to the protein. Those which are shown in blue color, these are the proteins. Okay, green color जो है that is the carbohydrate chain. If the carbohydrate chain is attached to the phospholipid bilayer, then it will be called as glycolipid. Glyco means carbohydrate, lipid means fat. So if your carbohydrate chain is attached to the phospholipid bilayer, it is called as glycolipid. On the other hand, if your carbohydrate chain is attached to the protein part, then it is called as glycoprotein. Glycoproteins and glycolipids basically act as receptors. जैसे आप कोई मेडिसिन खाते हो तो आप सोचते हो ना कि मेडिसिन को कैसे पता चलता है कि मैंने बॉडी के इसी पार्ट में एक्ट करना है, बॉडी के इस पार्ट में पेन हो रही है तो मैंने यहाँ पे वर्क करना है. दैट इज़ एक्चुअली ड्यू टू रिसेप्टर्स. या फिर मान लो हमने खाना खाया तो इमीडिएटली आफ्टर हैविंग मील्स आवर ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक्स. ठीक है, तो जब भी हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक करता है हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ होती है. अब इंसुलिन क्या करेगी, उस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजेगी. तो ये सारा प्रोसेस कैसे होगा, रिसेप्टर्स के थ्रू. इंसुलिन विल बाइंड टू योर सेल्स and in turn it will enable the glucose to enter inside your cells. So आपके जो भी बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, दे एक्ट एज रिसेप्टर्स. दे विल हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स. और जो आपके प्रोटीन्स हैं लाइक इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स, दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सम सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द मेम्ब्रेन. So this is the basic structure of your plasma membrane. If you look at the cell, suppose this is your cell. तो मैंने बोला आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बाइलेयर है, राइट. यहाँ पे लेट्स सपोज आपका न्यूक्लियस है. Here we have cytoplasm. This is nucleus. This is cytoplasm.
and this one is the plasma membrane, that is actually bilayer. This is first layer, this is second layer. Now you can see the outermost layer, that is the first layer of the plasma membrane, that is facing external medium, that is facing outside of the cell, whereas जो आपकी second layer है inner plasma membrane, that is facing the cytoplasm of the cell, or you can say it is facing interior of the cell. तो फर्स्ट लेयर में भी यही स्ट्रक्चर होगा, फॉस्फोलिपिड्स होंगे, और सेकेंड लेयर में भी ये होगा, फॉस्फोलिपिड्स होंगे, ठीक है। हेड होगा और टेल होगी, हेड इज़ रिप्रेजेंटिंग फॉस्फेट एंड द टेल इज़ रिप्रेजेंटिंग द लिपिड पार्ट, ओके। Now we will discuss the transportation across the plasma membrane. There are two types of transportation, one is active and the another one is passive. Passive transportation means the movement of substances from the region of high concentration to the region of low concentration. And in active transportation, the substances move from the region of low concentration to the region of high concentration. नॉर्मली क्या होता है, हमारे नेचर में जो भी मूवमेंट्स होती हैं वो हाई टू लो होती हैं। इफ़ यू लुक एट दी विंड्स, ठीक है, विंड्स कैसे चलती हैं, जब आपके एटमॉस्फेयर में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, सो एयर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम to the region of high pressure area to the region of low pressure area. Similarly, if you have two bodies in contact with each other, then the body which have higher temperature, तो उससे टेम्परेचर जो है, उसकी जो हीट है, that will start flowing from high temperature body to the low temperature body. अगर आप वाटर की मूवमेंट भी देखो तो वाटर भी जो है, किसी भी एरिया में अगर वाटर का प्रेशर ज़्यादा है, वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से लो प्रेशर एरिया की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जो नेचर की मूवमेंट्स हैं, ठीक है, दे आर ऑलवेज फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन एंड इट डजेंट रिक्वायर एनी एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड सच टाइप ऑफ मूवमेंट्स are said to be taking place along the concentration gradient. Gradient क्या होता है, डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस है, मैं बोल रही हूँ, एक तरफ हाई कंसनट्रेशन है, एक तरफ लो कंसनट्रेशन है। तो जब भी कोई भी सब्सटेंस मूव करेगा फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन, उसको हम बोलेंगे इट इज़ फ्लोइंग अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट एंड इट डजेंट रिक्वायर एनी एनर्जी, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रेडियंट के लॉन्ग मूव कर रहा है। But in the active transportation, substances are moving from low to high concentration and it is against the concentration gradient. So it requires energy in the form of ATP. I'll explain again कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू सब्सटेंसेस जो हैं वो सेल के अंदर जाएंगे या सेल के बाहर जाएंगे, and these substances can move in and out of the cell either by active transportation or passive transportation. In passive transportation, the substances always move along the concentration gradient, that is from high concentration to low concentration, and it doesn't require any energy. Whereas if the substance is moving from low to high concentration, that is against the concentration gradient, then it requires energy in the form of ATP, that is adenosine triphosphate. So these transportation processes we will be discussing here. Before proceeding with these processes, let's understand that your plasma membrane is selectively permeable or semi-permeable, which means it will allow only some molecules to move in and out of it. Just like आपके घर में गेट होता है, डोर होता है, आप उस डोर को किसी नॉन के लिए खोलोगे, राइट। अगर आपका कोई जान पहचान का है, कोई आपका, ठीक है, कोई आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, फैमिली मेम्बर है, तो उसके लिए आप डोर खोलोगे।
अगर कोई स्ट्रेंजर आ जाता है, ठीक है, तो यू विल नॉट ओपन द डोर, उसको बंद करके रखोगे आप। सो इन द सेम वे आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी सबको सेल के अंदर नहीं आने देगी या सबको सेल से बाहर नहीं जाने देगी। सो दैट इज़ बेसिकली एक्टिंग लाइक अ गेट। इट विल अलाउ passage of only some molecules or selective molecules through it. That's why it is called as selectively permeable or semi permeable. Now your plasma membrane is easily permeable to water and gases. ठीक है, तो वाटर और गैसेस जो हैं वो ईज़िली आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर सकते हैं, चाहे वो सेल के अंदर जाएं चाहे वो सेल से बाहर आएँ, ठीक है। तो उनकी मूवमेंट हो सकती है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ परमिएबल फॉर देम, वो उनकी एंट्री या एग्ज़िट को अलाउ करती है। बट देर आर सम मॉलिक्यूल्स, देर आर सम सब्सटेंसेस विच कैन नॉट एंटर और एग्ज़िट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब वो सेल के अंदर कैसे जाएंगे या सेल के बाहर कैसे आएंगे, उनके लिए कुछ तो होना चाहिए। उनके लिए हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन्स। We have discussed there are two types of proteins in the plasma membrane, extrinsic proteins or peripheral proteins, and the another one is integral protein. तो ये proteins क्या करेंगे, they will form some channels or pores for the entry of other substances to the plasma membrane. अब पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि वाटर और गैसेस की मूवमेंट कैसे होती है। वाटर की जो मूवमेंट है दैट विल टेक प्लेस बाय ऑस्मोसिस, और गैसेस की जो मूवमेंट है दैट विल टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन। एंड दीज बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हमने अभी किया, जिसमें मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन without any requirement of the energy, okay, because they are moving along the concentration gradient from high to low concentration. तो ऑस्मोसिस भी पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की एग्जांपल है एंड डिफ्यूजन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। सो गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कैन easily move through your cells with the help of diffusion. So diffusion generally refers to the movement of substances like gases from the region of high concentration to the region of low concentration. और जो वाटर है या कोई भी लिक्विड है, सॉल्वेंट है, उसकी मूवमेंट अगर होगी तो उसको आप बोलोगे ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस जो है दैट बेसिकली रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स from the region of high concentration to the region of low concentration through the semi permeable membrane. डिफ्यूजन में मैंने सेमी परमिएबल वर्ड यूज़ नहीं किया। डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस from the region of high concentration to the region of low concentration. And osmosis क्या है, it is the movement of solvent molecules from the region of high concentration to the region of low concentration through the semi permeable membrane. इसका मतलब जो ऑस्मोसिस है उसमें आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, और जो गैसेस की मूवमेंट है उसमें आपको मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेम्ब्रेन होगी तब भी डिफ्यूजन हो जाएगी, मेम्ब्रेन नहीं होगी तब भी डिफ्यूजन हो जाएगी। आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। जैसे आपने अपने रूम में कोई भी डिओड्रेंट और कोई आपने परफ्यूम स्प्रे किया तो उसकी जो फ्रेगरेंस है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। दैट इज़ बेसिकली द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। या फिर यू कैन टेक अनदर एग्जांपल लाइक यू आर कुकिंग समथिंग इन योर किचन and you get fragrance or smell of it sitting in the room, because जो भी कुकिंग से पार्टिकल्स हैं एयर के, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, दे स्टार्ट मूविंग हेयर एंड देयर, एंड दोज पार्टिकल्स विल अल्टीमेटली रीच योर रूम एज वेल वेयर यू आर सिटिंग। तो आपको फ्रेगरेंस वहाँ बैठे हुए भी आ जाएगी। सो दैट इज़ बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। ओके, तो आपने अपने रूम में कोई मेम्ब्रेन तो लगा नहीं रखी, गैसेस ऐसे फ्रीली मूव कर रही हैं विदाउट एनी मेम्ब्रेन, विदाउट एनी लेयर, ठीक है। सो इसका मतलब आपको डिफ्यूजन के लिए कोई मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है।
बट जब आप ऑस्मोसिस करोगे, सॉल्वेंट की मूवमेंट करोगे, फॉर दैट यू नीड अ मेम्ब्रेन. एंड वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस इज़ योर आर. ठीक है, हमने एक्वागार्ड्स लगाए होते हैं, वाटर प्योरीफायर्स लगाए होते हैं घर पे, तो उसमें जो प्रोसेस होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस का होता है, उसमें भी ऑस्मोसिस होती है. सो उसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू आपके वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन, एंड वाइल डूइंग सो द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड. So both these are the passive transportation. Now we have different conditions, not conditions. We have three processes or three types of solutions: isotonic solution, hypertonic solution, and hypotonic solution. First of all, we will discuss hypotonic solution. Okay, this concept is based on the osmosis. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को समझो पहले. Hypotonic solution. Okay, so here you have a beaker in which there is some solution, और वो solution क्या है आपका? हाइपोटोनिक है. हाइपो मीन्स लेस. हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम. हाइपो मीन्स लेस. अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या लेस होगा? लेस होगा सॉल्यूट. अगर सॉल्यूट लेस है तो फिर ज़्यादा क्या होगा? सॉल्वेंट ज़्यादा होगा. I hope you know about the solute and solvent. Whenever we talk about any solution, then solution has two components. One is the solute and the another one is the solvent. Let's take example of the sugar solution. If you are dissolving sugar in water, तो आपका जो water है that is solvent, और जो sugar molecules हैं they are solute. In the salt solution, salt is solute and water is solvent. तो जो लिक्विड कंपोनेंट होता है विच इज़ प्रेजेंट इन मोर अमाउंट उसको आप सॉल्वेंट बोलते हो, एंड द सब्सटेंस विच इज़ बीइंग डिजॉल्व्ड दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट. सो इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो मीन्स लेस, सो इसमें सॉल्यूट लेस होगा एंड सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, मीन्स वाटर ज़्यादा होगा इसमें बेसिकली. एंड इफ़ यू कीप योर सेल इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, लेट्स से आपने अपना कोई सेल यहाँ पे प्लेस कर दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, अब क्या होगा? एज यू नो, सॉल्वेंट और वाटर always moves from the region of high concentration to the region of low concentration through the plasma membrane, right? अब मैंने बोला कि ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसमें सॉल्वेंट आपका ज़्यादा है, इसका मतलब सेल के अंदर सॉल्वेंट कम होगा. लुक, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? कंपैरिजन कर रहे हो दो चीज़ों का. ठीक है, जब भी आप हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हो तो आप सॉल्यूशन को हमेशा कंपेयर कर रहे हो विद द सेल. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होता है. किससे ज़्यादा होता है? सेल से ज़्यादा होता है. ठीक है, अगर मैं बोलूँ एक बच्चे के मार्क्स ज़्यादा हैं तो किससे ज़्यादा हैं? आप उसको कंपेयर तो कर रहे हो ना किसी दूसरे बच्चे से. तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन को सेल से कंपेयर कर रहे हो. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा है. किससे ज़्यादा है? सेल से ज़्यादा है, मतलब सेल के अंदर सॉल्वेंट कम है. ओके, सेल के अंदर सॉल्वेंट कम है. नाउ व्हाट विल हैपन? The solvent from the hypotonic solution
will start moving inside the cell. So, whenever your cells are kept in hypotonic solution, the cell will swell up because the water or the solvent from hypotonic solution will enter inside the cell, thus making it swell, and eventually the cell will burst up. क्योंकि सेल के अंदर जब सॉल्वेंट एंटर कर जाएगा सेल की स्वेलिंग हो जाएगी एंड फाइनली सेल जो है वो बर्स्ट कर जाएगा, इट विल ब्रेक डाउन. बट प्लांट सेल बर्स्ट नहीं कर सकता और ना ही आपका फंगल सेल बर्स्ट कर सकता है क्योंकि उनके पास सेल वॉल है एंड सेल वॉल इज़ वेरी हार्ड, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द सेल. सो अगर आपको मैं बोलूँ कि आपके पास दो सेल्स हैं, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, और आपने दोनों को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, तो उसमें से कौन सा सेल बर्स्ट करेगा? एनिमल सेल, बिकॉज एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है, सो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, इट कैन ईजिली बर्स्ट आउट. वेयर एज जो आपका प्लांट सेल है दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय सेल वॉल, सो उसकी बर्स्टिंग नहीं होगी. नेक्स्ट वी हैव हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक, अब हाइपर का मतलब है ज़्यादा, तो इसका मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपका क्या ज़्यादा होगा? सॉल्यूट ज़्यादा होगा लेकिन सॉल्वेंट कम होगा. हाइपो का मतलब था कम और उसमें सॉल्यूट कम था, सॉल्वेंट ज़्यादा था. हाइपर का मतलब है ज़्यादा, तो इसमें ज़्यादा सॉल्यूट होगा लेकिन सॉल्वेंट कम होगा. किससे कम होगा? सेल से कम होगा. So what is going to happen when you place your cell inside the hypertonic solution? ये आपका hypertonic solution है जिसके अंदर आपका solvent कम है. किससे कम है? सेल से कम है. मतलब इस सेल के अंदर आपका solvent ज़्यादा है. Now क्या हो गया? सॉल्यूशन के अंदर solvent कम हो गया, सेल के अंदर ज़्यादा है. सो सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम सेल टू दी सॉल्यूशन. तो इसका मतलब सेल से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा. एज अ रिजल्ट सेल विल श्रिंक. थर्ड इज आइसोटोनिक. आइसो मतलब सेम, तो आइसो में सेम होगा. सॉल्वेंट का कंसनट्रेशन जो है सॉल्यूशन के अंदर और आपके सेल के अंदर वो सेम होगा. तो अगर कंसनट्रेशन ही सेम है, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ही नहीं है, कंसनट्रेशन में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो कोई मूवमेंट नहीं होगी. ना तो सॉल्वेंट सेल के बाहर आएगा और ना ही सॉल्वेंट सेल के अंदर जाएगा. सो आपके सेल में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, ना तो वो स्वेल करेगा और ना ही वो श्रिंक करेगा. सो दैट इज़ योर आइसोटोनिक सॉल्यूशन. एंड इसकी एक एप्लीकेशन भी है, लाइक अगर कोई पर्सन जो है वो सिक है, ठीक है, फीवर या कोई भी इन्फेक्शन है और उसको हमने ड्रिप लगाई है, ठीक है, ड्रिप लगाते हैं, तो ड्रिप में कौन सा सॉल्यूशन होता है? हाइपर होगा, हाइपो होगा या आइसोटोनिक होगा? इट विल बी आइसोटोनिक. क्योंकि अगर हम पर्सन को हाइपरटोनिक ड्रिप लगा देंगे तो उसके सेल तो श्रिंक कर जाएंगे, और अगर हम पर्सन को हाइपोटोनिक ड्रिप लगा देंगे तो उसके सेल तो स्वेल अप हो जाएंगे और बर्स्ट कर जाएंगे, पर्सन विल डाई, राइट. और अगर हाइपर लगा दिया तो वैसे ही श्रिंक हो जाएंगे, पर्सन डिहाइड्रेट हो जाएगा. सो जब भी हम पर्सन को ड्रिप लगाते हैं, सलाइन लगाते हैं, दैट शुड बी आइसोटोनिक. सो दैट इज़ द एप्लीकेशन इन मेडिकल साइंस. Here your three types of solutions are given, okay? So that is based on the osmosis. ओके, अब हमने डिस्कस किया कि जो वाटर है या फिर जो गैसेस हैं, दे कैन फ्रीली मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल. वाई? बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमिएबल फॉर द गैसेस एंड water. But there are some other substances apart from gases and water
और भी तो बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिनको सेल के अंदर जाना होता है या सेल से बाहर आना होता है, तो वो कैसे जाएंगे? बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेलेक्टिवली परमेबल है, दैट विल नॉट अलाउ द एंट्री और एग्जिट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स थ्रू इट, राइट? तो उनके लिए हमारे पास क्या होगा? प्रोटीन्स होंगे. सो वी हैव carrier proteins and we have channel proteins. And whenever the movement of the substances is taking place with the help of proteins, it is called as facilitated transport. फैसिलिटेट करना मतलब हेल्प करना, राइट? तो यहाँ पे आपके जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट है उसको कौन हेल्प कर रहा है? प्रोटीन्स हेल्प कर रहे हैं, राइट? कौन से प्रोटीन? कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स. Here example is given in your book, like we have glucose molecules. Glucose molecules cannot move through your plasma membrane as it is, because आपकी जो plasma membrane है that is not permeable for the glucose. It will not allow the passage of glucose through it. So there are some proteins like carrier proteins in your plasma membrane which will recognize the glucose molecules and will help in the transportation of them. ठीक है? Now carrier proteins जो होते हैं they are highly selective. इसका क्या मतलब है कि ग्लूकोज के लिए अलग प्रोटीन होगा, ठीक है? देन अगर आपका कोई और मॉलिक्यूल है उसके लिए अलग प्रोटीन होगा, ठीक है? तो हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग प्रोटीन होगा. ये ऐसा नहीं होगा कि एक प्रोटीन सब सब्सटेंसेस की एंट्री करवा देगा, नो. सो दे आर हाईली सेलेक्टिव. ओके, नेक्स्ट वी हैव चैनल प्रोटीन्स. चैनल प्रोटीन्स जो हैं दे आर एक्चुअली गोइंग टू फॉर्म दी टनल और पोर थ्रू दी मेम्ब्रेन थ्रू विच सब्सटेंसेस कैन मूव इन एंड आउट. कैरियर और चैनल प्रोटीन्स में मेन डिफरेंस क्या है कि जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं दे बाइंड विद योर सब्सटेंस एंड विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वेयरएज आपके जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं वो एक टनल शेप बना देते हैं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, या एक पोर बना देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसके थ्रू आपके जो सब्सटेंसेस हैं दे कैन मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल. अब आपके जो कैरियर जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं दे मस्ट हैव द एप्रोप्रिएट चार्ज, ठीक है? अगर मान लो आपने किसी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना है और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो आपका जो चैनल प्रोटीन है वो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर चैनल प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज हुआ तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड सब्सटेंस कैन नॉट एंटर इनसाइड द सेल, ठीक है? तो अगर आपका सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज है, चैनल प्रोटीन नेगेटिव होना चाहिए. एंड इफ़ द सब्सटेंस विच नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज, तो आपका चैनल प्रोटीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए. हेयर यू कैन सी कैरियर प्रोटीन्स आर देयर. जैसे कोई सब्सटेंस आया ये ओपन अप हो जाएगा and it will throw this substance inside the cell. Here you have channel proteins, ठीक है? चैनल प्रोटीन्स पे आपका कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी नेगेटिव चार्ज है. ओके, चैनल प्रोटीन इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड और बाकी के जो सब्सटेंसेस की हम मूवमेंट करवा रहे हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. So we have discussed osmosis, diffusion, then we have discussed facilitated diffusion which takes place with the help of carrier proteins and channel proteins. और facilitated diffusion हम क्यों करवाते हैं? क्योंकि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल and it will not allow the passage of all the molecules through it. It is freely permeable to water and gases, but other substances need to be transported as well, so they need some channel proteins and carrier proteins for the transportation, ठीक है? और that is called facilitated diffusion.
नेक्स्ट वी हैव एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बताया क्या होता है। इसमें जो मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की, दैट इज़ अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज़ फ्रॉम लो टू हाई कंसनट्रेशन, and it requires energy in the form of ATP. And examples of active transportation are endocytosis, exocytosis. Endocytosis क्या होता है? When there is entry of any substance inside the cell, that is called endocytosis. And exo is exit. तो जब भी कोई सब्सटेंस आपके सेल से एग्जिट करेगा उसको एक्सोसाइटोसिस बोलोगे, और जब एंट्री करेगा तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलोगे. And the endocytosis is of 3 types. Okay, endocytosis जो है that is of 3 types: phagocytosis, pinocytosis, sorry I'm repeating again. एंडोसाइटोसिस जो है वो 2 टाइप्स की है. एक होती है फेजोसाइटोसिस और एक होती है पिनोसाइटोसिस. फेजोसाइटोसिस जो है उसमें क्या होगा कि आपका जो सेल है वो किसी इन्फेक्शियस पार्टिकल को इंगल्फ करेगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एनी बैक्टीरिया, वायरस और फंगल सेल एंटर इनसाइड योर बॉडी, your WBCs are activated, white blood cells, right? Because they are involved in defense mechanism of your body. They protect you from the infections. वो कैसे आपको प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से? कोई भी जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सेल आपकी बॉडी में आया, WBC उसको इंगल्फ करेंगे. ठीक है, मतलब उसको दे विल ईट अप द सेल एंड विल डिस्ट्रॉय इट. तो उसको हम बोलते हैं फेजोसाइटोसिस. तो यहाँ पे उन्होंने रेड ब्लड सेल की एग्जांपल ले ली है. रेड ब्लड सेल आ रहा है मेम्ब्रेन के अंदर एंड मेम्ब्रेन हैज़ फॉर्म्ड दी वेसिकल. दिस राउंड स्ट्रक्चर इज दी वेसिकल. तो यहाँ पे इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी. ठीक है. पिनोसाइटोसिस हम किसको बोलते हैं? फॉर द मूवमेंट, फॉर द एंट्री ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेज एंड द अदर सॉल्यूट्स डिजॉल्व्ड इन इट. तो जब भी मेम्ब्रेन में कोई लिक्विड पार्टिकल और उसके अंदर जो सॉल्यूट्स डिजॉल्व हैं वो एंटर करेंगे सेल के अंदर, उसको आप बोलोगे पिनोसाइटोसिस. तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं एंडोसाइटोसिस की. और एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा? जो भी वेस्ट मटेरियल है सेल के अंदर, ठीक है, वो सेल के बाहर जाएगा थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So you can just give it a read. Pinocytosis involves the intake of a small droplet of fluid along with any dissolved substances or tiny particles that it may contain. Then phagocytosis क्या है? Phagocytosis involves the intake of large droplet of extracellular fluid, often including bacteria or bits of organic material. This process occurs only in specialized cells such as white blood cells or the cells of our immune system. Okay? तो जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में अटैक करेगा तो फेजोसाइटोसिस होती है मेनली. और पिनोसाइटोसिस जो है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेल ड्रिंकिंग. तो इसमें कोई भी जो लिक्विड है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सेल के बाहर, और उसमें जो भी डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं दे विल एंटर इनसाइड द सेल. देन वी हैव रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस एज वेल, जिसमें कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं आपकी मेम्ब्रेन के साथ, और उस रिसेप्टर के साथ वो अटैच हो गए आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर करेंगे, सेल के अंदर एंटर करेंगे. And exocytosis, here you can read, it is a process for removing substances from the cell. So here is the summary of all the concepts which we have discussed. Look, ये मैं आपको मतलब थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इन सब का, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ओके, आपका जो यूनिट सी है दैट इज़ बेसिकली
on the topic of photosynthesis and respiration. और अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ी है, ये सारा बेसिक है. दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, ओके, बट एज इट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये, बिकॉज ये बेसिक नॉलेज होती है सेल की. फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन करने से आप पहले आपको इसकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है. तो दैट्स वाई हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं ब्रीफ में. सो वी हैव डिस्कस डिफ्यूजन, दैट इज़ अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, कोई एनर्जी नहीं चाहिए. ऑस्मोसिस में भी हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो टेकिंग अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज़ फ्रॉम हाई टू लो. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो भी अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होती है, पर यहाँ पे आपको क्या चाहिए, चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, राइट. और यहाँ पे आपको कोई एनर्जी नहीं चाहिए. उसके बाद आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, जिसमें मूवमेंट होती है अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट with the help of ATP, that is energy, right. और इसमें आपका एंडोसाइटोसिस आ जाएगा, एक्सोसाइटोसिस आ जाएगा. So this is all about the plasma membrane. So we have discussed the basic part, ठीक है. सेल का जो भी स्ट्रक्चर है वो सारे हमने बेसिक सब कर लिए हैं. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. So I will make separate video for that, okay.